Assalamu alaikum. Uh, this is your mathematics class, and we know that we are just studying the chapter number 1 and exercise 1b, which is topic is HCF and LCM, week 4, and lesson is 5 lesson. You know that about what is LCM and HCF. There is no need to repeat the concept of HCF and LCM again. Now today we will solve the question number 8 of exercise 1b and page number 22. I just explained the statement of question number 8. In question number 8, it is given that there are two racing cars, car X and car Y. They have to just start their race on a track of 2 kilometers. Okay, you know, it is given that the car X completes the track of 2 kilometers in 60 seconds and car Y completes the track of 2 kilometers in 80 seconds. Okay, now please tell me which car is faster car, which car is completing the track in minimum time. Obviously car X is completing the track in 60 seconds and car Y is completing the track in 80 seconds. So that's why we say that car X is the faster car because it is completing the track with the minimum time. Okay, it is given in part 1 that how long in seconds will it take for both the cars to be back at the starting point at the same time. कहते हैं कि जब कार स्टार्ट हुई तो ज़ाहिर सी बात है कोई आगे है कोई पीछे है कार, तो कहते हैं करते करते एक ऐसा वक्त आता है जहाँ पे ये दोनों की दोनों कार्स दे विल बी बैक एट द स्टार्टिंग पॉइंट. ओके, दे विल बी सेम बैक एट द स्टार्टिंग पॉइंट में दोनों की दोनों कार्स स्टार्टिंग पॉइंट पे एक ही वक्त पे आ जाती हैं. हमने वो बताना है कि किस वक्त वो इकट्ठे आती हैं, एक ही टाइम पे, एक ही पॉइंट पे किस टाइम पे इकट्ठे आती हैं. तो बेटा इस क्वेश्चन में ये तो नहीं गिवन कि फाइंड द ग्रेटेस्ट पॉसिबल वैल्यू या फाइंड द लोवेस्ट पॉसिबल वैल्यू, ऐसे कोई चीज़ नहीं गिवन बेटा. तो हम क्या करें, किस तरह से क्वेश्चन करें, विच शुड वी फाइंड एलसीएम और एचसीएफ. क्वेश्चन की पिक्चर में तो देख लिया आपने, एलसीएम निकालना है, एलसीएम तो निकालना है, लेकिन क्यों एलसीएम क्यों निकाला है यहाँ पे, एचसीएफ क्यों नहीं निकाला. Okay, I told you that when there will be time in the question and time हमेशा increase होता है, तो जब हम जहाँ पे चीज़ें increase हो रही हों तो वहाँ पे हम क्या निकालेंगे, LCM. Okay, I told you whenever we just be given by the length, distance and time, we will find the LCM. Okay, in this question time is given to us, so that's why we will find the LCM. और LCM और 60 और 80 का निकाला है, 2 से डिवाइड किया, फिर 2 से डिवाइड किया, 5 से डिवाइड किया. आपको पता है कि मेरे पास बहुत शॉर्ट टाइम है, वी हैव जस्ट 10 मिनट्स टू एक्सप्लेन दिस क्वेश्चन. इसको डिवाइड करेंगे और 3/4 तक आ जाएगा नीचे. 3/4 विल नेक्स्ट डिवाइड नहीं हो रहे. ओके, बाय एनी टेबल. Okay, they will be our non-common factor. Okay, 2, 2 and 5, they will be our common factor. You know that formula of LCM is common factor multiplied by non-common factor. 2 multiplied by 2 multiplied by 5 multiplied by 3 multiplied by 4. 2 2s are 4, 4 5 the 20, and 3 4 will be as it is. 23 is the 60. 60 multiplied by 4 also will be 240 seconds. Means both the cars will be at the same point back at after 240 seconds. Okay, क्वेश्चन में भी था कि हाउ लॉन्ग इन सेकेंड्स विल इट टेक टू बी बोथ कार्स टू बी बैक एट द स्टार्टिंग पॉइंट एट द सेम टाइम. ओके, सेकेंड्स में ही आंसर देना था. नाउ द सेकेंड पार्ट इज हाउ लॉन्ग इन मिनट्स. Keep this in your mind. In A part we were playing with the seconds. Now in B parts it is given that how long in minutes. ओके, अब सेकेंड्स को मिनट में कन्वर्ट करना है. ओके, हाउ लॉन्ग इन मिनट्स विल इट टेक फॉर द फास्टर कार टू बी 5 laps अहेड ऑन द ऑफ द स्मॉलर कार. क्योंकि तो जो फास्टर कार है तो वो 5वें चक्कर पे कितने मिनट्स लेगी, या यूँ कह लें कि इट विल इट टेक फॉर द फास्टर कार टू बी 5 laps अहेड ऑफ द स्लोअर कार. ठीक है, वो कितनी आगे होगी स्मॉलर कार से. ठीक है, फास्टर कार कितनी आगे होगी.
आपको पता है कि जब वो स्टार्ट हुए तो पहला चक्कर, तो पहला लैप तो ज़ीरो से स्टार्ट हुए ना, पहला तो ज़ीरो ही लैप था ना। ज़ीरो से स्टार्ट हुए तो फिर एक जगह फर्स्ट लैप कंप्लीट हुआ, फिर सेकंड लैप कंप्लीट हुआ, फिर थर्ड लैप, फिर चौथा चक्कर। क्लियर? तो हम ज़ीरो से स्टार्ट करेंगे ना, 0 1 2 3 4 5, देखें 1 2 3 4 5 हो गए ये 5 चक्कर। ओके, तो अब देखिए ना, फास्टर कार टू बी 5 लैप्स अहेड टू बी द स्लोअर कार। हाँ जी, तो आपने सबसे पहले क्या करना है, आपने 60 को डिवाइड करना है, हाँ जी, सॉरी, यू नो दैट द फास्टर कार कंप्लीट्स वन लैप, एक चक्कर वो कितने मिनट में करती है, 60 सेकेंड्स में, ये हमें गिवन है। अब इस 60 सेकेंड्स को हमने मिनट में कन्वर्ट करना है। तो बेटा इस 60 को हम 60 से डिवाइड करेंगे ना, आपको पता है ना सेकंड को मिनट में कन्वर्ट करने के लिए हमें डिवाइड करना होता है, स्मॉलर टू बिगर में जा रहे हैं तो डिवाइड करेंगे, सेकंड स्मॉलर है मिनट बिगर है, 60 पे डिवाइड किया, 60 सेकंड में हमेशा 1 मिनट ही होता है, 60 सेकंड का मतलब 1 मिनट, ठीक है। तो मीन्स 1 मिनट में वो पाना एक चक्कर कंप्लीट करती है। तो बेटा जी अगर 1 मिनट में कर रही है तो दूसरे में दूसरा चक्कर 5 क्या होता है मिनट्स लेगी, फिर 10 मिनट्स लेगी, फिर 15 लेगी, फिर 20 लेगी, क्योंकि उसमें कहा हुआ है कि 5 लैप्स अहेड, तो मतलब यह है कि 5 से ही डिवाइड कर देना है, मल्टीप्लाई कर देना है, 5 0 द 0, 5 1 द 5, 5 2 द 10, 5 3 द 15, 5 4 द 20, मीन्स के वो जो कंप्लीट सा 5 लैप्स जो 5 चक्कर कंप्लीट करेगी तो वो 20 मिनट्स में ही कंप्लीट करेगी। क्लियर? अगेन आई एम रिपीटिंग कि ये गिवन है हमारे पास कि हाउ लॉन्ग इन मिनट्स विल इट टेक फॉर द फास्टर कार टू बी 5 लैप्स अहेड। तो आपके पास ये 5 चक्कर दिए ना, तो आपने क्या करना है, आपने टाइम को 5 से ही मल्टीप्लाई कर देना है, क्योंकि आपके पास 5 चक्कर ही दिए हुए ना, 5 लैप्स दिए हुए हैं, तो इस 5 से ही आपने मल्टीप्लाई कर देना है जो क्वेश्चन के स्टेटमेंट में गिवन है। तो ये पहला ज़ीरो से स्टार्ट करेगी ना, तो ज़ीरो टाइम होगा जब पहला लैप स्टार्ट करेगी, तो 0 1 2 3 4 लिख लिया आपने, तो 0 5 द 0, 5 1 द 5, 5 2 द 10, 5 3 द 15, 5 4 द 20, मीन्स वो पाँच चक्कर 20 मिनट्स में ही कंप्लीट करेगी फास्टर कार। ठीक है? क्लियर? आई होप यू विल अंडरस्टैंड दिस क्वेश्चन। ओके, अल्लाह हाफिज़।